جی So if you feel the nerves, so that is purely because I've never been on any stream before or any other live program. So there will be some nerves initially, so bear with that too. ناٹ اے پرابلم، اچھا یو آر ہوم. اچھا ایک تو یہ کہ آپ کا جو آپ نے بھی بات کی آئی پارشلی ایگری ود یو آن دی ہسٹری آف دی ریلیجن آف اسلام، لیکن اس میں جو پارشل میرا ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ میرے خیال میں نے جہاں تک آپ لوگوں کی اسٹریمز سنی ہے ماضی میں بھی، آپ کی جو اسٹریمز کے اندر انالیسز ہے وہ بہت زیادہ بیسڈ ہے آف سنی سورسز. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی اسٹریمز کے اندر ایسے لوگ جنہوں نے باقی سورسز کو دیکھا ہو ود ان دی اسلامک کمیونٹی، وہ لوگوں کی کنٹریبیوشن مجھے کم دکھتی ہے. اور اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں زیادہ مڈی ہو جاتی ہیں، وہ اتنی کلیئر نہیں رہتی کہ جتنی سنی سورسز کو دیکھنے کے بعد لگتی ہیں. میں اس کی ایک ایگزامپل یہ دوں گا کہ جیسے اگر آپ لیں شیعہ سورسز کو، تو جو شیعہ سورسز ہیں اور ان کی جو حدیث کی نریشنز ہیں، ان کی جو کلیکشن کا میکنزم ہے وہ سنی سورسز سے مختلف ہے مکمل طور پہ. وہ ایسے ڈفرینٹ ہے کہ ان کے بہت سارے، اگر آپ ان کے کلیمز کو مان لیں تو سورسز ایسے ہیں کہ جو کتابیں ہیں وہ لکھی گئی بہت ارلی ان کے اماموں کے ٹائم میں، اور وہ کاپی ہوتی رہی فرام بک ٹو بک رادر دین کہ میں نے سمیت و فلانا سے سمیت و فلانا اور پھر آگے سے اس نے سنا اور آگے سے اس نے سنا اور وہ چائنیز وسپر بن جائے. تو ویسا سلسلہ وہاں پہ دکھتا نہیں ہے. اب اگر آپ اس ٹریڈیشن کے اندر رہتے ہیں اور اگر یہ بات ہم درست مان لیتے ہیں تو ان کی کتابیں آپ کو ایز ارلی ایز سلیم بن کیس کی کتاب مل جاتی ہے جو کہ ان کے بقول حضرت علی کے زمانے میں لکھی. تو اگر ہم یہ مان لیں ٹریڈیشنز اور اس کے حساب سے چلیں تو پھر یہ ڈبنک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ ریلیجن جو ہے وہ واقعی اتنا دیر سے فارم ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ دوسرا گیپ لیں سنی سائڈ سے تو پھر تو وہ ساری تھیوری ٹھیک بیٹھتی ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو گیپ کی گنجائش بڑی کم رہ جاتی ہے. ناٹ تو ایٹ اس آل، کے ناٹ بارے ایٹ میں آل آئی سر. وڈ لائک ٹو ہیو ایک یور سیکنڈ، اوپینین. ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. جی ایک سیکنڈ سر. ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ حضرت علی کے زمانے کی بک ہے، بلکہ شیعہ سورسز تو وے آفٹر ہے. ٹھیک ہے نا، شیعہ ٹھیک ہے. سورسز تو بہت بعد کے سورسز ہیں. شیعہ سورسز مطلب کوئی بھی ایسی بک، مطلب کہ ہمارے پاس ایسی کوئی بک موجود نہیں جو حضرت علی کے ساتھ وہ اٹیچ بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ٹھیک ہے نا، کتاب سلام آج کل کے زمانے میں لوگ لے کے پھرتے ہیں وہ تو بالکل اس کے بولشٹ. متعلق کیا آپ کی کوئی نالج ہے کہ کیا یہ کب کی ہے؟ نہیں بالکل بولشٹ ہے جی. یہ تو بہت بات کی کتابیں ہیں. یہ تو مطلب کہ کیا نام ہے اس کا، آپ کہہ ہر چیز تو ہم نے وہ مطلب کہ رسول اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی بک مطلب کہ یہ بڑی اپنا بڑے بہت ایکڈیمک لیول کے اوپر اس بات کی ریسرچ ہو چکی ہے کہ ہم اولڈسٹ سے اولڈسٹ بک اگر کوئی ڈھونڈ پاتے ہیں تو وہ سب سے اولڈسٹ جو چیز ہم ڈھونڈ پاتے ہیں وہ تبری ہے. اچھا، ناٹ ایون لائک اچھا باقی کتابیں بھی نہیں؟ یہ جو سیرہ کی کتابیں ہیں کیا وہ اس سے پرانی کو موجود ہے سیرہ کی کتابوں میں سے؟ جی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کیا نام ہے 135 سال کے بعد جو اپنا کتاب تھی وہ ابن اسحاق کی تھی، وہ جی آئی، جی. جس کا ایک صفحہ بھی ہمارے پاس نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اور اس کو، طبی شادی سے مجھے کچھ کاپی کرتا ہے شاید ہاں کچھ جی، کانٹینٹ اچھا جی، ٹی وی وہ کا. اپنا جو کیا نام ہے اس کا اسحاق کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے. اس کے بعد اسحاق کا ایک شاگرد تھا جس کو ابن حشام کہا جاتا ہے. وہ خود اپنی بک میں جو لکھتا ہے اچھا مزے کی بات ہے کہ ابن حشام کی بھی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اگلی کتابیں جو اگلی کتابیں آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ابن اسحاق بھی تھا، کوئی ابن حشام بھی تھا. ٹھیک ہے نا، ٹیکنیکلی فزیکلی طور کے اوپر جب ہم ان چیزوں کو کنگالتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سامنے. آپ ایک ورق نہیں رکھ سکتے. یہ ساری سنائی باتیں ہیں. اچھا اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آتے ہیں اپنے کیا نام ہے ان کا یار، اپنا میرے دماغ سے نکل رہے ہیں. انہوں نے وہ لکھی ہے حدیثوں کی کتابیں ہیں 2-3. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ یہ 255 ایئرس ہو جائے گی.
जहाँ तक आप कह रहे हैं कि क्या नाम है शिया बुक्स है, शिया बुक्स सर क्या नाम है इसका, मैं आपको शर्त दे सकता हूँ, इसके ऊपर बहुत हर किस्म की रिसर्च हो चुकी है। हाँ जी, शिया की अच्छा, जहाँ तक कोई भी मेरी बुक जो है, नॉलेज है थोड़ी सी लिमिटेड, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। जी बोलिए। अच्छा, जहाँ तक मेरी इस पे बड़ी लिमिटेड सी मालूमात हैं वो ये हैं कि उनका जो हिस्टोरिकल क्लेम है, क्योंकि मैं पर्सनली आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज कि आई ग्रू अप इन अ शिया बैकग्राउंड, शायद यू वुड हैव गेस्ड बाय नाउ, ऑल्दो कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अभी शायद मेरे मुतालिक ये बात कहना इतना दुरुस्त नहीं रहा, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू वेरियस फेजेस इन माय लाइफ और मैंने बहुत चीज़ें अपनी आंखों से देखना पसंद करता हूँ, तो रीच डिफरेंट कंक्लूजन्स। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ शिया सोर्सेज, जैसे जो क्लासिकल नैरेटिव है वो ये है कि जो एक जैसे हमारे पास मौजूदा किताबें हैं, जैसे कुलैनी की किताब ले लें, काफी मुदारा जो कि अभी मौजूद है, और कुलैनी की आई थिंक जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 260 के अराउंड है इन इस्लामिक ईयर्स। और अगर आप कुलैनी की किताब लें तो कुलैनी जो है वो उसकी किताब के साथ एक फहरिस्त अटैच्ड है, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये वो किताबें हैं जिससे कुलैनी ने कॉपी किया है। सो कुलैनी अपने सोर्सेज को अगेन समेतों के साथ नहीं लिखता, बल्कि लिखता है मैंने इस किताब से कॉपी की है, और क्लेम ये है कि वो किताबें एग्जिस्ट करती थी और ये उससे कॉपी है। दिस लाइक तिबरी, कि तिबरी कहता है कि मैंने सीरा से कॉपी किया और वो ये है, तो क्या उससे थोड़ी बहुत ऑथेंटिसिटी बन नहीं जाती इन चीज़ों की? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम्म, अपना ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस कंटेंट में देख रहे हैं। हाँ जी, आपकी जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, हाँ जी, वो उनका क्या नाम है इसका आर्कियोलॉजिकली कोई ना कोई सबूत ज़रूर होना चाहिए। हाँ जी, और अपना कहानियों के बाद कहानियाँ लिख देनी तो मतलब को बड़ी आसान है। जिस तरह ये सारी अपना लिखी गई है, इब्न इसहाक जो 135 साल बाद सबसे पहली बुक जो लिखी गई थी वो अपना सीरे इब्न इसहाक थी, अपना सीरतुन नबी इब्न इसहाक, ये बताया जाता है अपेरेंटली, ठीक है, लेजेंडली ये बताया जाता है, बट वी डोंट हैव दैट बुक, ठीक है। और ठीक है। फिर उसको आगे लिखते हुए इब्न हिशाम अपने दिपाचे में लिखता है कि मैंने इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें एडिट कर दी हैं जो इसके मुतल्लिका नहीं थी, Fair enough, yeah. अच्छा, ठीक है ना। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको एक वजह की बताऊं, मैंने आपकी वैसे बात को सपोर्ट करती है इस नैरेटिव नैरेटिव, वो ये है कि मैंने एक्चुअली जो मौजूदा किताब है मैं उसको एक दो दफ़ा पढ़ा है, और मेरा उसमें सबसे पहली जो चीज़ मुझे जिसने हैरान किया कुराब इस्लाम में, जो कि एलिजिडली उस ज़माने में लिखी गई और वो बंदा जिंदा था थोड़ा बाद में भी करबला के वाक़या के, उसमें करबला के वाक़े का मेंशन नहीं है। तो कमिंग फ्रॉम अ शिया सोर्स ये मेरे लिए बड़ा एस्टोनिशिंग था कि एक कोई भी शिया किताब जो कि क्लेम भी करती हो, और मुझे उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा डाउट क्रिएट हुई कि अगर ये वाक़या वाकई इस बुक में नहीं है तो क्या ये एक तरह से उसके ज़्यादा पुराने होने पर दलील नहीं देता कि ये किताब शायद जेन्युइनली पुरानी लिखी गई है, और से कंटेंट आप रिलायबली वो ना रहा हो 100% जो कि कभी था, लेकिन शायद ये किताब कुछ किसी ना किसी फॉर्म में शायद पहले एग्जिस्ट करती थी। आई मीन शायद तो हम कई चीज़ों पे कर सकते हैं ना सर। ठीक। हाँ, शायद तो हम कई चीज़ों पे कर सकते हैं, मतलब कि अब अपना कुरान की तरफ देख लीजिए, हमें कुरान बिल्कुल नज़र ही नहीं आता है। हाँ जी, ये नज़र आता है आगे जाके अपना 7वीं सेंचुरी के आखिर पे नज़र आता है, ठीक है। ठीक है, वो अच्छा, भी ये कुरान में नज़र आता एक है। और बात है जिसके ऊपर, सॉरी मैंने आपको बार बार जी बोलिए बोलिए। थोड़ी सी करना चलती है, तो मुझे थोड़ा सा आप इसके लिए मुझे थोड़ा सा रखिएगा, मेहरबानी रखिएगा मेरे साथ इस मामले में। अच्छा, इसमें ये है कि एक जो बात यहाँ आपकी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है, कट रही है, आप शायद रोड में ये इसलिए। नैरेटिव में दो तरह के हैं, और एक, हाँ जी मैं रोड मैं हम्म, इसलिए मैंने पॉलिसी की थी, मैं कोशिश करता था ऊंचा बोलूं जी ताकि मैं ज्यादा बेहतर तरीके से ऑडिबल रहूं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि कुरान के बारे में भी तो जो शिया नैरेटिव है वो दो तरह के हैं। एक वो नैरेटिव है जो कि आजकल के ज़माने में है, और जो वो है जो कि बिल्कुल सुन्नी नैरेटिव के साथ है कि भाई ये किताब जैसी थी वैसी आई और आज हमारे हाथ में वैसी पकड़ी हुई है और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन बहुत सारे इवन शिया भी ये बात नहीं जानते कि जो शिया सोर्सेज हैं उसमें कुरान के बारे में बिल्कुल क्लियर रवायात मौजूद है
जिसमें जो शिया इमामों से मुंसलिक है और वो ये कहती हैं कि भाई ये कुरान वो नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें तब्दीली है, लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही पढ़िए, अभी आप इस बात पर पर्दा रहने दीजिए कि ये बात ऐसे क्यों है, लेकिन ये बदल दिया गया है। अब ये बात बहुत सारे शिया भी नहीं मानते, और ये बात जो है वो किसी हद तक हिस्टोरिकल सोर्सेज के साथ बहरहाल जाके मिल जाती है कि हिस्टोरिकली आप इस बात को साबित करना बहुत मुश्किल है कि कुरान बिल्कुल जैसा हमारे हाथ में पकड़ा हुआ है ये हमेशा वैसे ही था, या इसका जो एग्जैक्ट ओरिजिन है वो वही है जो हमें बताया जा रहा है। बहरहाल क्या नाम है इसका, जो हमारे सामने आर्कियोलॉजी में किताब अपना कुरान मिलता है वो 8वीं सदी के अंदर जाकर मिलता है। हाँ जी, ठीक है और वो भी पूरी तरह नहीं मिलता, ठीक है ना। जी, वो जो सना मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हाँ जी, वो सना मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो मतलब कि वो भी कोई कोई बहुत पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है, वो रसूल के भी ज़माने से, मेरा ख्याल रसूल की पैदाइश से भी ज़्यादा, उनमें कई ऐसे पार्चे हैं जिनकी डेट जो है वो रसूल के 250 साल पहले की अपना बताई जा रही है, ठीक है हाँ, ना। लेकिन उसमें तो ये भी हो सकता है ना कि वो जो 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 एक्चुअली जो मटेरियल है जिसके ऊपर लिखा गया है वो रीयूज हुआ हो, तो उसमें तो पॉसिबिलिटी है, सर्टेनली नहीं कहा जा सकता ना उसको। मतलब लेकिन वो कहानियां तो सारी पहले एग्जिस्ट करती थी ना जी, हाँ नहीं वो तो है, मतलब उसको नहीं मैं डिबेट कर ठीक है रहा, ना। मैंने जैसे मैंने आपको अच्छा, कहा कि और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी कुरान को चीजों तो में हम बिलीव करता हूँ। कुरान को देखिए, कुरान के अंदर जो चीजें हैं वो ऑलरेडी पहले से क्रिश्चियनिटी में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। वो सारी की सारी मतलब कि क्रिश्चियनिटी है, वो पहले ऑलरेडी चीजें उसी तरह, लोग अल्लाह को अल्लाह कहते थे, अरबी को अरबी में मतलब अपना अरबी में पढ़ा जाता था, बिल्कुल यही लैंग्वेज यूज अपना किया जाता, सीरियाक लैंग्वेज यूज की जाती थी, या अपना ग्रीक लैंग्वेज भी उसके अंदर यूज हुई है, मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो वहाँ के इलाकों की अपना लैंग्वेजेस थी उसके मुताबिक वो काम चला करता था। तो कुरान तो मैं कुरान तब मानूंगा जब पूरा कुरान किताब की सूरत में मुझे मेरे सामने पड़ा हो कि भाई ये इस डेट को ये कुरान उतरा था, ये पूरी की पूरी किताब यहाँ पड़ी है। अब आलू उन्होंने क्या नाम है इसका अपना भावलपुर से ले लिए हैं, हाँ जी, गोश्त उन्होंने अपना लाहौर से ले लिया है, हाँ जी, मिर्चें उन्होंने इस्लामाबाद से ले ली हैं, हाँ जी। अब ये तीनों चीज़ें पहले एग्जिस्ट करती थी, आलू गोश्त तो नहीं ना, पकी हांडी तो नहीं ना एग्जिस्ट करती थी, बाद में ये हाँ पका ठीक ही है, गया। हाँ जी वो तो ठीक है, जैसे मैं अगर आपको जो मेरी नॉलेज में है, जैसे जो अल्फाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो है फॉर एग्जांपल इनकी जो रॉक इंस्क्रिप्शन हैं वो इस्लाम से पहले हैं, और इनकी डिफरेंट फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर आप यमन की तरफ जो रॉक इंस्क्रिप्शन हैं साउथ में, उसमें चूंकि अल जो है वो मार्फा बनाने के लिए या खास बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वहाँ आखिर में पोस्ट फिक्स किया जाता था नून को, तो वहाँ पर आपको रहमानन मिलता है लफ्ज, इस तरह के डिस्क्रिप्शन है। तो मतलब है ऐसी ट्रेडिशन, जिससे पता चलता है कि इसका कुछ पार्ट्स जो है वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हाँ जी, सारी अब चीजें हमारे रहमान जो है, हाथ। अब जब आपने रहमान का नाम लिया है तो जी जी वो जो था ना इब्रा, हाँ जी, जी, जो हाँ बड़ा यमन से, मशहूर, वो भी यमन हाँ से था। यमन से, इब्रा के जो इब्रा जिस खुदा को मानता था उसका नाम रहमान था, ठीक है। जी उसकी ठीक है इंस्क्रिप्शन में ये बात साफ पता चलती है कि वो किसी रहमान नामी खुदा को वो माना करता था, रहमान नामी मतलब कि कोई डीएटी थी, उसको वो फॉलो किया करता था। जी, बेहतरीन। अच्छा एक तो ये हो गया, अच्छा ये तो है वो टॉपिक था ज़िमनन जो मैंने आपकी जब आप इंट्रो दे रहे थे और मैं ऑनलाइन आ रहा था तो मैंने सुना, लेकिन मैं एक्चुअली जिस चीज़ में इंटरेस्टेड था कि मैं आप लोगों की इसके बारे में राय जानूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम सारे लोग जितने भी यहाँ पर आते हैं, अक्सरियत जो कि पहले किसी न किसी रिलीजियस सिस्टम में रहते थे और उसी रिलीजियस सिस्टम से अपनी सारी चीज़ों को कहने सोर्स करते थे, और अभी जो है वो उससे बाहर देख रहे हैं या देख चुके हैं और किसी डिफरेंट नतीजे में पहुंच चुके हैं। उनके लिए सबसे अहम जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि वो सारे इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो कि अपनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की वजह से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कम हमें जो सच बताया जा रहा है सारे का सारा वो सच नहीं है, या वो पार्शली सच है, या वो पूरा झूठ है, या जो भी नतीजा उनका होता है। और फिर वो एक डिफरेंट उनके अंदर जो तजस्सुस होता है वो उनको मुख्तलिफ मंजिलों में ले जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो मुझे महसूस होता है कि ज़्यादा लोग जो आपकी स्ट्रीम्स पर आते हैं वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जी कोई फॉर एग्जांपल क्रिएशन और क्रिएटर नहीं है, और जो है या ये अगर पहले तो मैं ये कि क्या ये मेरा जो बात है ये एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी दो नज़रिए मुमकिन है।
ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم بولیں کہ ریلیجیس کریٹر اور ریلیجیس کریشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور ایک ہم یہ بولیں کہ نہیں جی سرے سے کریٹر اور کریشن ایگزسٹ نہیں کرتی. تو مجھے جب میں دیکھتا ہوں چیزوں کو تو میں اس طرح پہنچتا ہوں کہ میرے پاس اگر میں کہوں جو بہت اسٹرانگ آرگومنٹ جو مجھے اپیل کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کائنات کے اندر یا یونیورس کے اندر بہت ساری چیزیں مجھے دکھتی ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فائن ٹیونڈ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایلیمنٹس آف ڈیزائن ویزیبل ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی ریلیجس گاڈ یا کسی گاڈ کے ایون جو گاڈ کا لفظ ہے وہ بڑا اس ٹائم پر وہ ہو چکا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کسی گروپ نے بنایا ہو سکتا ہے کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہو، لیکن اس پہ ڈیزائن کے ایلیمنٹس بڑے زیادہ ویزیبل ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نان کنفرمسٹ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. نان کنفرمسٹ ہے. Sorry, آئی آپ ایگری ود repeat دیٹ. آئی کیجیے ڈونٹ گا. I کنفرم. was just kind of phased out. آپ پلیز اپنا question repeat کیجیے. اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ جب میں ڈیزائن کو میں جب یونیورس کو دیکھتا ہوں تو میں نے ریلیجنس کو دیکھا ہے جہاں تک میری سمجھ ہے. میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے پاس جو بھی ریلیجنس ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی خدا کا کلیم بہت درست معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس نے بنایا ہوا. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس بات کے ساتھ بھی اسٹرگل کرتا ہوں کہ میں یہ جمپ لے لوں اور کہوں کہ مجھے کوئی ایلیمنٹس آف ڈیزائن نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو ہمارے پاس چیزیں بہت ساری فائن ٹیونڈ ہمیں دکھتی ہیں، اور یہاں پر فائن ٹیوننگ سے مراد وہ کلاسیکل فائن ٹیوننگ پلس آرگومنٹ ہے جو میرے مائنڈ میں ہے. اور اس کے علاوہ جو اور ادر ایلیمنٹس آف ڈیزائن آپ کو چیزوں میں دکھ جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کچھ کریشن ہے ضرور، بٹ اٹس ناٹ فرام اے ریلیجیس پرسپیکٹو. اٹ کوڈ بی فار ایگزامپل ہم کوئی سیمولیشن ہو سکتی ہے، اٹ کوڈ بی کہ ہم کوئی کاسمک انٹرٹینمنٹ سسٹم کا پارٹ ہو سکتے ہیں جو کوئی اور انجوائے کر. آئی ڈونٹ کیئر واٹ دیٹ از، لیکن مجھے ایلیمنٹس آف ڈیزائن دیکھتے ہیں. آئی کینٹ اگنور دیٹ. دیکھیں آپ ایلیمنٹ آف ڈیزائن اس پہ کافی دفعہ خالد کی بھی چینل پہ بات ہم لوگ کر چکے ہیں. جب کسی سسٹم کے سٹارٹ سے اس کی انفینسی سے ایک طرح سے ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو کوئی چیزیں بن رہی ہیں اور وہ ایک سرٹن لاز آف فزکس فالو کرتے ہوئے وہ چیزیں ایک میچورٹی پہ آ رہی ہیں، کیونکہ اوبیسلی یونیورس میں گیلیکسیز بن رہی ہیں، کولیپس ہو رہی ہیں، اسٹارز بن رہے ہیں، کولیپس ہو رہے ہیں، اینڈ اٹ سیمس ٹو بی فالوئنگ سرٹن لاز. ٹو سی دیٹ دیر از سم ون کنٹرولنگ دس، اس کا ثبوت تو نہیں ملا پرانے زمانے میں پریمیٹو سوسائٹیز میں. جی اچھا سوری میں نے آپ کی بات انٹرپٹ کی، آپ مکمل کر لیجیے پھر میں بولتا ہوں. جی تو پریمیٹو سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں وی تھاٹ when we looked at different phenomena جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تھے ہمارے اینسسٹرس کو، تو they would actually say that it's the hand of God. Everything جو سائنس نے ہمیں سمجھائی ہے وہ it has come to we've come to the realization کہ اس میں certain laws follow ہو رہے ہیں and there is no hand of God. So I would say کہ I don't know if I'm answering your question that way or not, but in most of the physical phenomena that we see, when we understand those phenomena, it just shows that it's following certain laws, certain, اس کی ورکنگ میں جب ہم لوگ ایک تھیوری بنا کر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایویڈینس آف گاڈ تو سائنس کو نہیں مل رہا، تو دیر از نو نیڈ ٹو ایکچولی بلیو دیٹ دیر از any intelligent designer, whether it's in life or in the cosmos or in the creation of the stars or the planets. کہیں بھی نہیں ملتا کوئی ایویڈنس. دیکھیں علی، آپ جانتے ہیں آپ کہاں ہیں، کس ملک میں؟ آپ؟ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں. آسٹریلیا میں. آپ جانتے ہیں فرانسس کالنز کون ہے؟ فرانسس کالنز جو تھے وہ ہیومن جینوم پروجیکٹ جو تھا امریکہ میں فار 10 ایئرس آپ جانتے ہوں گے. وہ ڈیواؤٹ کرسچن ہے اور انہوں نے ہیومن جینوم پروجیکٹ MD PhD انہوں نے ہیڈ کیا، اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اٹس امپاسبل، he doesn't see any intelligent design. He argues for Christianity. لیکن کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جینیٹکس میں جیسے میوٹیشن سے ایوولوشن ہوتی ہے، نیچرل سلیکشن از سچ a fact evident in genetics کہ آپ اس کو انٹیلیجنٹ نہیں کہہ سکتے. ایسا لگتا ہے کہ
you know mutations हो रही हैं, certain physical processes हो रहे हैं, उससे बाहर you know उसका नतीजा हो रहा है evolution. So I think कि ऊपर से ये लगता है आपको इंटेलिजेंट डिजाइन, लेकिन आप अगर डिटेल में जाएं तो आपको सिर्फ ये ट्रायल एंड एरर और जो यू नो फॉल्टी कॉपीज होती हैं वो मर जाती हैं, जो सर्वाइवल कर सकती हैं सर्टेन एनवायरनमेंट्स में वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, जिनको इक्विप करता है सर्वाइवल के लिए ये म्यूटेशंस. और इसमें इतनी ट्रायल और एरर में और कहना कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन है, इट्स काउंटर टू रीजन. अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात को अगेन इंटरप्ट करता हूँ. मैं एक्चुअली थोड़ा सा मेरे ख्याल में मेरे एंड पे गलती की है कि मैंने अपने आर्गूमेंट को एक्सप्लेन सही तरह से नहीं किया कि मैं ऐसा क्यों समझता हूँ, क्योंकि इसको समझने के मुझे अंदाजा होगा कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं. कि जैसे जो हमारे पहले साथी थे उन्होंने कहा कि जी एवरीथिंग इन कॉस्मोस फॉलोज फिजिकल लॉज, और आपका जो आर्गूमेंट है वो ये है कि एवोल्यूशन जो है वो एक वैलिड है. और ये दोनों बातें ऐसी हैं जिनको मैं एक्चुअली मानता हूँ. मैं इन दोनों को बिल्कुल इनके अगेंस्ट नहीं हूँ. मुझे यकीन है कि एवोल्यूशन नाम की चीज है, एवोल्यूशन होती है, और वो जेनेटिक्स और उसमें जो सेल रेप्लिकेशन है और डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसमें. और उसको फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो जिसको फेवर करते हैं वो फिर आगे सर्वाइव करता है, और बाकी जो है सर्वाइव नहीं कर पाते. और इस तरीके से लाइफ जो है फाइन ट्यून होती जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू दी एनवायरनमेंट जहाँ पे वो है. तो मतलब इसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा. अब मेरी जो रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि डिजाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. एक तो हम थोड़ा सा स्टेप पीछे लेते हैं. हम अगर कॉस्मोस की बात करें तो वहां पर एक क्लासिकल फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी में भी डिस्कस होता है. वो ये है कि बहुत सारे जो हमारे कायनात के अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो उनकी जो लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग है कि वो कितना छोटे छोटे नंबर्स हैं, और उनके अंदर तब्दीली आने से जो कायनात एज वी नो इट कि वो फेवरेबल टू वो उनके लिए मसला बन जाता है. और फिर उसका आंसर जो क्लासिकली होता है वो लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं मेगावर्स से या मल्टीवर्स से, इन चीजों से कि भाई नहीं वो भी इन्फिनिट है और उनमें से हम एक हैं, लिहाजा वो जस्ट हैपन टू बी इन वन ऑफ दोस जिसमें सब कुछ फाइन ट्यून. तो उसका एक आर्गुमेंट होता है. अब ये मैं जानता हूँ, अब ये भी हम आर्गुमेंट ले सकते हैं कि वो सजा वाकई में मल्टीवर्स हों और इतने ही हो और हम वाकई एक में हो और हम इसके पास कोई तरीका प्रूव या डिस्प्रूव करने का नहीं है हमारे पास. लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती. अगर हम दूसरे एंड पे चले जाए, अभी हम फिजिक्स ऑफ वेरी लार्ज की बात करें, अगर हम फिजिक्स ऑफ वेरी स्मॉल में चले जाएं कि जहाँ पर आप चले जाते हैं इनटू योर क्वांटम लेवल जो आपकी फिजिक्स है, और वहां पर हमें दिखता है कि एक डिस्कनेक्ट है फ्रॉम द लार्ज फिजिक्स. और वो ये है कि वहां पर ऐसे प्रिंसिपल्स एट प्ले हैं जो कि बड़ी, अगर मैं सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल करूँ क्रूड सा, तो वो दे ऑलमोस्ट बॉर्डर ऑन इल्यूजन के जैसे हम कहते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट है. अब क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है वो एक जो रियलिटी की इल्यूजन है उसको क्रिएट करने में एक बड़ा रोल प्ले करती है, अगर मैं इसे इल्यूजन बोल सकूं. लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसका खुद से होना, या मैं कहूँ कि यार ये फिजिकल लॉज को बे करिए तो वहां पर जाकर लॉज नहीं होती, वहां पर हम प्रोबेबिलिटीज में चले जाते हैं कि नहीं यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटीज हैं. या जो हम कहते हैं कि जो रेट्रो कॉजेलिटी नजर आती है हमें वहां पर, वो रेट्रो कॉजेलिटी जो ऐसे लगता है वो एलिमेंट ऑफ डिजाइन दिखता है कि यार ये ऐसे है कि जो एक सिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली इवेलुएट कर रहा है अपने टाइम एंड स्पेस को, और इवेलुएट करने के बाद एक प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन लेता है कि यहाँ पर ये मुझे इस तरह बिहेव करना है. अब जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, या अगर मैं कहूँ कि यार ओके हम अभी एवोल्यूशन देख सकते हैं एट प्ले, लेकिन एट द वेरी बिगिनिंग अगर मैं इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी देखूँ, क्योंकि देखिए जब आप फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट की बात करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी का आर्गुमेंट है कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि ये कांस्टेंट है, इतनी छोटी वैल्यूज खुद ले लें और ये एग्जिस्ट करते हो. देखें अगर नहीं होता तो we wouldn't be talking about it, right? If it wasn't so we wouldn't be talking about it. Or जो all the other universes if they were there, right? If all the universes if they were there वो नहीं चल सकी और हमारी चल सकी, we don't know. So I think it's okay to say that we don't know the answer. नहीं, देखिए हम दूसरी तरफ जाते हैं अभी, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि क्वांटम स्केल के ऊपर फिर एक डिफरेंट तरह की इल्यूजन दिखती है. वहां पर इट्स नॉट अबाउट कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से हम एक पॉसिबिलिटी है. But quantum mechanics does very accurately define
what's going to happen, right? Quantum entanglement is also an artifact of the laws of quantum mechanics, and it was predicted mathematically, and it turned out to be true. हमारी हाँ जी, वो ठीक है। इंट्यूशन के खिलाफ है, राइट? हमारी इंट्यूशन के खिलाफ है कि दो चीजें कैसे स्पीड ऑफ लाइट से faster they can know each other's state. So but we just don't know the answers right now, but we know कि जो laws जो हैं quantum mechanics के, जो mathematical equations हैं, वो बिल्कुल correct हैं, and at the microscopic scale I they're thoroughly working. understand. Yeah, they're working. हाँ ठीक है, नहीं वो देखिए लॉस तो फॉलो करते हैं, हम ये नहीं कह रहे। देखिए जिसने भी सिस्टम डिजाइन किया है, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूँ, आप मुझे इसकी इजाजत दें, तो वो ऑब्वियसली उस सिस्टम जो डिजाइन को फॉलो करेगा। ये तो आर्गुमेंट नहीं है कि वो डिजाइन को फॉलो नहीं कर रहा। पॉइंट किसने ये है डिजाइन कि किया क्या भाई? इसमें How do you explain the designer? It doesn't make any sense. देखिए उसके बहुत सारे रीजन। मैं आपकी स्ट्रीम पर मुझे याद है कि एक दफा ये किसी ने शायद आपकी स्ट्रीम पर नहीं, किसी आपके साथी की स्ट्रीम पर ये बात तो बहुत बार डिस्कस होती है कि यार इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। मतलब अगर एक बात करें सिमुलेशन हाइपोथेसिस है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिमुलेशन में रह सकते हैं और सिमुलेशन में आप बिल्कुल लॉस को फॉलो करेंगे, और ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिमुलेशन में लॉज होते हैं। जिसने भी उसको डिजाइन किया उसका एक पर्पज होगा, हम वो पर्पज गेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एक सिस्टम के अंदर है तो आप उसके बाहर नहीं देख सकते, आप उसके नहीं जान सकते कि पर्पज क्या है। लेकिन मेरा जो आपके फोरम पे आने का और ये क्वेश्चन करने का ये कि मुझे ये लगता है कि ये हमारे इस तरह की फेवरेट पैनलिस्ट आ गए हैं, सब्सटेंशिया निगरा, जो आप जवाब दे सकते हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से। वो वेलकम सब्सटेंशिया निगरा, आप जवाब दें इनका। everyone welcome, thank you very much. पैनल बहुत ही रिच है आज। बाकी लोग भी है, हाजी भाई को भी सलाम और आदाब, मोमो आपको सलाम। वेलकम सर, वेलकम। एंड आई थिंक नॉन कन्फॉर्मिस्ट हैं और वर्ड रियलिटी हैं। नॉन कन्फॉर्मिस्ट पहली दफा है हाजी भाई के चैनल पे। यस, फर्स्ट डे चलिए, वेरी गुड, फर्स्ट डे ऑन द जॉब। वेलकम। नहीं आप सारे असातिज़ा में से है। पैनल जो है रिचेस्ट हो गए। नहीं सारे उस्तादान जो हैं वो असातिज़ा एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी आ गए हैं। तो ये हमारे कॉलर आए हुए हैं टी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी इनके साथ। इनका अली नाम है अली, और ये डिजाइन की बात कर रहे थे कि हम शायद सिमुलेशन में हैं, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट आपने सुना होगा। अब हाँ जी, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट और उसकी डिकंस्ट्रक्शन हम अगले 2 मिनट्स में कर लेंगे, इतना मसला नहीं है। बहुत सारे, अगर आप फिजिसिस्ट को फॉलो करते हैं, आप उन फिजिसिस्ट को भी के काम को भी फॉलो करें जो कि फाइन ट्यूनिंग के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, और व्हाई दे आर क्रिटिक, व्हाई फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट इज अ फ्लॉड आर्गुमेंट विल बी क्लियर इन अबाउट 90 सेकेंड्स। मगर उससे पहले देखिए, हमें अपनी जो डिग्रीज ऑफ बिलीफ है इन अ प्रोपोजिशन, वो बहरहाल उनको प्रोपोर्शनल रखना चाहिए है जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है और जिसमें हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा है। देखिए, अभी मैंने तकरीबन 2-3 मिनट पहले से ही कॉन्वर्सेशन सुनना शुरू की, तो उससे मुझे एक तो अंदाजा ये हुआ कि एवोल्यूशन में तो आप एवोल्यूशन के एविडेंस को आप डिनाई नहीं कर रहे, ठीक है। आपका क्वेश्चन कॉस्मोलॉजी के लेवल पर है, ठीक है, और यूनिवर्स के लेवल पर है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है वो एक कंपाउंड क्वेश्चन है, जो मैं अभी तक पूरा प्रेजेंट नहीं कर सका। वो कंपाउंड इस तरीके से है कि क्लासिकल फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट जो है वो कॉस्मोलॉजी का क्वेश्चन है। मैं आता हूँ उसको, मैं जरा, मुझे आप 1 मिनट दे दीजिएगा, वो उस तरफ मैं आता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब आपके पास वो चीज, वो डोमेन जिसका एविडेंस बहुत ज्यादा है, व्हाट वी नो, उसकी बेसिस पर कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना और अपने डिग्रीज ऑफ बिलीफ को उसके मुताबिक मॉड्यूलेट करना, दैट आई बिलीव इज मोर रैशनल एज कंपेयर्ड टू ब्रिंगिंग इन दोज एरियाज जिन पर कलेक्टिवली एज अ ह्यूमैनिटी की अभी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा डीप नहीं है। यानी इधर जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड होगा वो बेस्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो टू अ सर्टेन लेवल ऑफ
कॉन्फिडेंस, और एक फील्ड वो है जिसमें आर्ग्यूमेंट बिल्ड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स विच वी डू नॉट नो एंड वी आर इन्वोकिंग आवर इग्नोरेंस टू बेसिकली पॉस्टुलेट समथिंग एल्स, ठीक है। और कुछ डोमेन्स ऐसी हैं जिनमें हम अपनी नॉलेज को इन्वोक करके वी आर पॉस्टुलेटिंग समथिंग। तो इन दो लाइंस ऑफ रीजनिंग को इक्वेट नहीं किया जा सकता। चूंकि एवोल्यूशन का एविडेंस अबंडेंट है, ओवरवेलमिंग है, evolution in and of itself is antithesis of design, ठीक है। तो आप उस डिजाइन की पॉसिबिलिटी को बड़ी हद तक जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन मेरा स्ट्रेस इस बात पर है, और टोटली ऑनेस्ट रैशनल इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से, कि एक डोमेन वो है जिसका एविडेंस ओवरवेलमिंग है और हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा है उसके बारे में, और वो आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई ये मैं आई एम द एंटीथेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, आई एम द एंटीथेसिस ऑफ डिजाइन, ठीक है। क्योंकि एवोल्यूशनरी प्रोसेस इतने फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स जिसमें ना तो कोई फोरसाइट का एलिमेंट नजर आता है, लैक ऑफ फोरसाइट, और वो वाली पॉसिबिलिटीज जो जनरेट होती हैं जिन्होंने फौरन बाद डाई आउट कर जाना है, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कुछ करना है, वो पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं एंड दे गेट एलिमिनेटेड, और उससे वो उस प्रोसेस से ये सारा क्या कहते हैं लाइफ की जो एवोल्यूशन है वो हमारे सामने मौजूद है। तो मैं अपनी अगर क्या कहते हैं रैशनैलिटी को इन्वोक करूं, तो मैं ऐसी फील्ड की बेसिस पर चीजों को एलिमिनेट करना या हाइपोथेसिस बिल्ड करना चाहूंगा जिसका एविडेंस हमारे पास ज्यादा है, नॉलेज हमारे पास ज्यादा है। पॉइंट नंबर 1, लेट्स गो टू द कॉस्मोलॉजिकल फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट। अच्छा, उसमें जाहिर बात है कि जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिसमें आपकी डिफरेंट पार्टिकल्स की चार्जेस की वैल्यूज हैं, और आपके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज जो हैं वो इतनी आपको लगती हैं कि इन अ नैरो रेंज है कि अगर वो जरा दाएं बाएं होती तो शायद चीजें जो थी वो आपस में एग्जिस्ट ना कर पाती। ये फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टेटमेंट्स देना कि प्रोबेबिलिटी इन कांस्टेंट्स की जो है वो ये होगी, उसकी कोई बेसिस नहीं है। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी नो ऑफ, वी डू नॉट हैव रिकॉर्ड फ्रॉम एनी अदर एक्सपेरिमेंट्स। तो ये कहना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप अगर, मुझे लग रहा है कि आपकी बैकग्राउंड अगर फिजिक्स में है या मैथमेटिक्स में, यू नो व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर। मैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का समझता हूं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई रेंज है वैल्यूज की तो एवरीथिंग इज इक्वली लाइकली, ठीक है। हाँ ठीक है। जैसे और फिर नेचुरल हो सकती है कि जब वो कोई और फिनोमेना हो, जैसे हमारा कद है, कलर है, इस तरह की चीजें। जी। और जाहिर बात है कि मैं आसान करने के लिए डिस्क्रीट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर देता हूँ। वैसे कंटिन्यूअस भी वैल्यूज हो सकती हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल के फर्ज करें आपका रोल ऑफ अ डाई है, तो अगर उसकी 6 वैल्यूज हैं तो अगर सारी इक्वली लाइकली है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। लेकिन अगर हमारे पास इन कांस्टेंट्स के बारे में ये, एंड सीरियस फिजिसिस्ट लाइक मैंने आपको कार्लो रोवेली का नाम बताया, और वेरी आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोट करने की जरूरत है। अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझते हैं तो इट विल बी क्लियर टू यू ऑलरेडी कि आपके हमारे पास कोई बेसिस नहीं है कि अगर फर्ज करें इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास ये है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन टेक एंड अस्यूम एनी वैल्यू, इस असर्शन की कोई क्या कहते हैं बेसिस है। ये तभी क्या कहते हैं आप फाइन ट्यूनिंग का आर्गुमेंट इन्वोक कर सकते हैं व्हेन यू नो दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भाई ये तो बिल्कुल ही रैंडम है, तो इस एक की वैल्यू तो 1/that मेनी पॉसिबल वैल्यूज होगी, तो बड़ी लो प्रोबेबिलिटी है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन we have got no access to that probability distribution. क्या probability distribution क्या हो सकती है? तो in the absence of our access to that probability distribution, ये कहना कि ये जो हम देख रहे हैं वैल्यू ये बड़ी unlikely है, this is a baseless statement, and this is the best deconstruction of the classical fine-tuning argument that I have ever come across. और I think it is rational to say कि fine-tuning argument की कोई basis नहीं है, क्योंकि वो इस probability distribution की एक a priori अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है जिसकी कोई बेसिस नहीं है।
تو یہاں پر فائن ٹیوننگ آرگومنٹ کے ساتھ پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ اس پہ یعنی آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایریا جو اس پر ڈسکشنز کرتے ہیں. آئی نو کہ فزسسٹ بھی انوالو ہیں, کاسمولوجسٹ بھی ہیں, بعض دفعہ فلاسفرز بھی اس میں ساتھ آتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے اس کے اوپر, مگر آن دا فیس آف اٹ, ان دی ایبسنس آف دا any access to that prior probability distribution, یہ کہنا کہ یہ بہت unlikely ہے, اس کی کوئی بیسس نہیں ہے, میتھمیٹیکل بیسس نہیں ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا اسٹیک کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم نے پروبیبلٹی کی بات کی, اور اب میں آپ کا پوائنٹ اس کو فیئر پوائنٹ کہوں گا کہ وہ بہت فیئر پوائنٹ ہے کہ ہمیں چونکہ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کی نیچر نہیں پتا تو ہم ایگزیکٹ پروبیبلٹی اس کی کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے, اور یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے. اور could be either way, to be honest, I mean it could be the way کہ یہ پروبیبلٹی بہت اسکیوڈ ہو, بہت چھوٹی ہو, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت لارج ہو, دونوں پاسبلٹیز ٹیبل پر ہے. لیکن میرے لیے جو ٹربلنگ چیز ہے وہ یہ اکیلے یہ چیز نہیں ہے. میرے لیے جو ٹربلنگ چیزیں ہیں وہ یہ کہ جب میں اس کو ان کمبینیشن ود دوسری چیزوں کے ساتھ دیکھتا ہوں جن کے بارے میں ہماری کچھ کے بارے میں باقیوں کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال ان کی آواز کٹ رہی ہے, وہ اپنا اس میں ہے میرا خیال گاڑی میں انہوں نے بولا تھا, تو شاید ان کا جو اپنا وہ ہے وہ کٹ رہا ہے سسٹم. میں ڈرائیو کرتے ہوئے ایک پارکنگ لاٹ کے اندر آ گیا ہوں, تو مجھے ایک سیکنڈ دیجیے, میں لیٹ می جسٹ فائنڈ اے اسپاٹ جہاں پہ میں کچھ بہتر پوزیشن میں ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ مجھے سن پائیں تو مجھے بتائیے گا. جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز, بیچ میں بالکل بلینک ہو گیا تھا, تو ریپیٹ کیجیے گا پلیز. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نا اس پاسبلٹی کو اسٹیک کرتا ہوں نا جب باقی چیزوں کے ساتھ, اور ایسی سائنس کے ساتھ. پھر غائب ہوگی آواز. یہ آواز ان کی دوبارہ سے غائب ہوگی. تو میں اس کو پارک کر کے ایسی جگہ آ جاؤں گا جہاں پر میں آپ سے آرام سے بات کر سکوں گا. کیا آپ لوگ 2 منٹ کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنی بات کو وداؤٹ می؟ جی بس اب ہم مطلب کہ ہماری اسٹریم کو چلتے چلتے تقریباً 5 گھنٹے سے بھی اوپر چلے گئے ہیں. ہم نے بھی مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو اب اپنا جانے کی تیاریاں پکڑ رکھی ہیں. اچھا. I don't mean to keep you. I don't mean to keep you. I hope you can. یہ آپ کی آواز بڑی خراب آ رہی ہے, لیکن پھر اگلے سنڈے کو آ جائیے گا, نو پرابلم. ہم اس بات پہ کنٹینیوس کریں گے کام کو. آج غالب بھائی نہیں نظر آئے. غالب بھائی تھوڑے سے بزی ہیں آج. اچھا. آج وہ تھوڑے باہر گئے ہوئے ہیں تو وہ بزی ہیں. میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں سبسٹینشا نیگرا سے. جی آپ نے سنا ہوگا وہ بگ رنگ اور جائنٹ آرک کے بارے میں, اور دوسرے جو جائنٹ اسٹرکچرز جو ڈسکور ہوئے ہیں یونیورس میں, اور کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ کاسمولوجیکل ماڈل جو ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ ہم نے کل بھی بات کی ابھی اس پر. اچھا بات کی. ہاں جی, تو اس میں پوائنٹ کر سکتا ہوں اسپیسیفک پیپرز کی طرف آف لائن اگر somebody is interested. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جو یہ بڑے جائنٹ اسٹرکچرز ہیں ان کے اندر پرابلم جو اپیرنٹ پرابلم آئی وہ یہ تھی کہ بھائی ان کا جو میس ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میسو اسٹرکچرز. اینڈ جو ماڈل ہے اس کے مطابق جو کرنٹ ماڈل اس کے مطابق یعنی اتنا میس کی ایکریشن ہو جانا if the big bang was about let's say 13.8 billion years ago, جو آپ کا estimate ہے whatever 13.7 something 13.8 billion years ago, تو وہ شاید کافی نہیں ہے ٹائم اس وقت کے حساب سے کہ اتنی جلدی اتنے میسو اسٹرکچرز بن سکے اور میس کی ایکریشن ہو سکے ایٹ دیٹ ریٹ. So therefore that's an anomaly. So either you have to push back the timeline of the Big Bang or something else. Okay. ٹھیک ہے, یہ بیسک مسئلہ ہے. لیکن اس آرگیومنٹ اور اس ریزننگ کے پیچھے I would say fair enough, but اس ریزننگ کے پیچھے جو
ये जो प्रेमिस है वो प्रेमिस ये है कि जो ये जो मैथ्स की जो एस्टिमेशन हुई है ये बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट है। तो अब आपके कई पेपर्स आ रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि जो वो मैथ्स की जो कैलकुलेशन है ना उसमें ओवर एस्टिमेशन है। अब चूंकि वो ओवर एस्टिमेशन है इसी वजह से आगे सारे आर्गुमेंट हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये आगे ज्यादा फ्लाई ना करे और मोस्ट लाइकली ये फ्लाई नहीं करेगा, और क्योंकि वो जो एरर्स हैं मैथ्स की एस्टिमेशन में वो शायद वाकई मैथ्स को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। इतने मैसिव वो स्ट्रक्चर्स हैं नहीं है जितने शुरू में लगे, तो मे बी एवरीथिंग वुड स्टिल बी द सेम, बट अच्छा क्या कहते हैं एवरीवन इज ओपन। इंटरेस्टिंग, थैंक यू एक्सप्लेन करने का, मैंने मिस कर दिया था वो। आजकल सब बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये जो देयर फॉर गॉड नहीं मैं वो उसका वो जो की जो पेपर्स है जो इस मॉडल का भी बताते हैं कि किससे मैथ्स ओवर एस्टिमेट हो रहा है, वो मैं किसी तरीके से आप तक पहुंच जाएंगे। जी, वो सिग्नल का जो ग्रुप है उनका, जो टेलीग्राम का ग्रुप है गालिब भाई का, उसमें अगर ट्रांसमिट कर दें वो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, वो चले गए अली भाई अब तो। हाँ जी, देखिए मैं जरा अगेन दोबारा आए चले दोबारा आए। हाँ जी, अगर आपको अगर आपको विस्टम की आवाज आ रही है तो मैं अपॉलॉजीज फॉर ऑडियो इश्यूज। अच्छा, मैं क्विकली अपना आर्गुमेंट रख के फिर मैं प्रॉब्ली ड्रॉप हो जाऊंगा ताकि आप लोग इसको आराम से टैकल कर लें, और शायद अगर मैं ना सुन पाया तो मैं फिर वक्त निकाल के बाहर में यूट्यूब से सुन लूंगा। अच्छा, बस मैं अपना आर्गुमेंट को सिर्फ इतना इंक्लूड करूंगा जो अभी तक बात नहीं कह सका, और मैं चाहूंगा कि सब्सटेंशिया निगरा इस पे बात करें, क्योंकि आई लाइक द वे ही लॉजिकली अप्रोचेस एवरीथिंग। और ये मैं अभी की इस कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको कुछ टाइम से सुन रहा हूँ ऑन डिफरेंट कॉल्स, एंड आई लाइक द वे ही थिंक्स एंड अप्रोचेस, जो कि बहुत लॉजिकल तरीका है और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए जो ट्रबलिंग चीज़ है वो अगली वो ये है कि हम जब फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं, मेरे लिए ट्रबलिंग है कि मैं फाइन ट्यूनिंग को अकेले नहीं देखता इन इट्स ओन आइसोलेशन। मैं जब उसको देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ओके, ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमारे पास मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और क्वर्कीनेस है जैसे क्वांटम लेवल के ऊपर है, वो भी एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में भी अगेन हमारे पास वेट फिडलिंग के ये क्या हो सकता है। लेकिन वो उसमें मुझे जो है ना वो हुडीनी इफेक्ट बड़ा लगता है कि यार इसमें जो है ना वो कुछ इल्यूजन क्रिएट की जा रही है फ्रॉम नथिंग, और इफ इट वाज एवर अ सिस्टम जिसके अंदर कोई जो मेड अप सिस्टम है, तो उसमें जो ये इस लेवल की क्वर्कीनेस है वो आपको नीचे ऑलमोस्ट फाइन स्केल, छोटी स्केल पर ही दिखनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि वहाँ की जो क्वर्कीनेस है कि हम एंटेंगलमेंट देखते हैं कि यार ये जो टाइम के रोल को नहीं कर रहा, या कोई रेट्रोकॉजलिटी दिखती है थोड़ी बहुत, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ऐसा पॉइंट करती है कि जैसे कि डिजाइनर के फ्रेमवर्क के हम नजदीक चले गए और वो फ्रेमवर्क ऐसे बिहेव करता है एट द वेरी बेसिक लेवल, उसको देख के ऐसे महसूस होता है। अब मैं एक इस चीज़ को फेवर करता हूँ कि यार ये बड़ी अजीबोगरीब बातें लगती है मुझे वहाँ पे। तीसरी चीज़ जो मुझे अजीब लगती है वो ये है कि ऑल्दो एवोल्यूशन जो है वो अब देख सकते हैं हम इनटू प्रैक्टिस है, लेकिन जो इसका जो और ये शायद यहाँ पर ये वो चीज़ है जिसको मैं होपफुली आंसर मौजूद है और मैं नहीं समझता, तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर मुझे समझा सके कि जो लाइफ की बिगिनिंग है कि जैसे हम कहते हैं कि यार पहला सेल बना। अब जब आप पहला सेल लेते हैं तो पहले सेल के अंदर हमें एक बड़ी जंप दिखती है। वो बड़ी जंप ये है कि हम एक तरह से देखते हैं कि वी गो फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग, और लिविंग की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा और स्ट्रक्चर जो कि एनर्जी अपने आप को प्रोवाइड करता हो और सर्वाइवल उसकी अंदर कहीं ना कहीं बिल्ट इन हो, इस सेंस में कि वो रेप्लिकेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता हो। लेकिन देन टू गो फ्रॉम देयर और फिर वहां से दूसरी जंप हमें दिखती है कि दो सेल्स दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर, तो हमें वो दिखती है। वो मैं नहीं समझता हूँ, मुझे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अगर आप समझा सके तो वेल बी गुड। और फिर देन वी गो फ्रॉम द थर्ड जंप विच इज के सेल्स डोंट जस्ट लाइक को एग्जिस्ट के वो एक से ज्यादा में इकट्ठे हैं, दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव जो है वो देखना हो सकता है, वो साइट विजन हो सकता है, वो डिफेंस हो सकता है, वो स्मेल हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव उसका हो सकता है। तो वहां चले एंड देन आई नो उसके बाद एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स प्रीटी मच एवरीथिंग। लेकिन कॉन्शियसनेस की तरफ मैं बाद में कभी आऊंगा, मेरा उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो ये वो चीजें अगर आप मुझे सब्सटेंशिया स्पेशली अगर आप मुझे इसके ऊपर तीनों चीजों को अगर आप मिला के देखें तो क्या ऐसे नहीं लगता कि हम ओवरवेलम कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज को in the favor of some kind of design, not a religious God design yet, लेकिन some kind of design.
चले मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो मुझे याद रहे, क्या कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो मैं ज़रा रेट्रो कॉजैलिटी से बात शुरू करना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, आपने रेट्रो कॉजैलिटी की बात की। पहली बात ये कि रेट्रो कॉजैलिटी उस तरीके से बहुत ज़्यादा still is considered a speculative concept, मगर mathematically it's mathematically possible है, ठीक है, mathematically possible है। और by the way वो quantum level पर नहीं है, सिर्फ quantum level पर नहीं है, वो macro level के ऊपर even special relativity जो है वो टाइम रिवर्सल क्रिएट कर सकती है। यानी टाइम रिवर्सल से मुराद ये है कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक इवेंट 1 T1 पे हो रहा है और इवेंट 2 T2 पे हो रहा है, तो ये एंड इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट कैन बी द अदर वे अराउंड, यानी कि T2 प्राइम कैन बी लेस देन T1 प्राइम दूसरे। तो वो, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं हुई, बट मैथमेटिकली दैट इज पॉसिबल। इंटरेस्टिंगली आप इंजॉय करेंगे क्योंकि आप इन चीजों को मेरे ख्याल से पढ़ते हैं और समझते हैं। इंटरेस्टिंगली रेट्रो कॉजैलिटी इज एन एंटी डिजाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। रेट्रो कॉजैलिटी, इफ इट इज ट्रू, actually should point us towards like laying the idea of designer to rest for good, ठीक है। वो इस वजह से कि डिजाइन का सारा कॉन्सेप्ट, डिजाइनर का सारा कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड कॉजैलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। कि एक टेम्पोरल ऑर्डर के, तभी तो कहते हैं कि डिजाइनर होगा पास्ट में जिसकी वो जो के कॉज है एंड देयरफॉर इफेक्ट्स आर प्रीसीडिंग कॉजेस। If this fundamental direction of causality is questionable, as in retro causality, डिजाइनर का कॉन्सेप्ट तो गया ना, कोलैप्स ही हो गया, क्योंकि वो खुद डिजाइनर का कॉन्सेप्ट कंटिंजेंट है फॉरवर्ड कॉजैलिटी के ऊपर, ठीक है। तो रेट्रो कॉजैलिटी इंटरेस्टिंगली इन अ वेरी सीरियस, एट द सेम टाइम इन अ वेरी फनी मैनर, वो तो एक फाइनल ब्लो डील करता है डिजाइन के आर्गुमेंट को। एक तो पहली बात रेट्रो कॉजैलिटी, आई एम अ फैन ऑफ रेट्रो कॉजैलिटी बिकॉज वो तो डिजाइनर के ऊपर जितनी बड़ी हिट लगाता है वो शायद और कोई आर्गुमेंट्स नहीं लगाते, पहली बात। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट आपने अगेन वो फिर हम उस ऑप्शन ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर आए, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट रेप्लिकेटिंग एंटिटी, फर्स्ट रेप्लिकेटिंग सेल, फिर आई थिंक प्रॉब्ली मल्टी सेलुलर लाइफ की, यानी बेसिकली आपका जो पॉइंट था ना वो था मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसको आप कह रहे हैं कि बड़ा स्टेप तब आया, बड़ा स्टेप तब आया। तो बड़ी बड़ी मेजर ट्रांजिशंस हैं और मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं लाइफ की एवोल्यूशन के अंदर, बिल्कुल है। कल गालिब के चैनल के ऊपर, कल की स्ट्रीम के ऊपर मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर जितनी मेरी बिसात, और यानी मैं जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट इन दीज एरियाज, जितनी मेरी बिसात थी मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर जो इस वक्त लीडिंग रिसर्चर्स हैं उनके काम को समराइज करने की कोशिश की थी। मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि कल की स्ट्रीम पे तकरीबन 45-50 मिनट्स हमने लगाए उसके ऊपर। हाउएवर मेरा पॉइंट वहीं पर बैठा हुआ है कि जब आप ये उन चीजों को इन्वोक करते हैं, जब आपने देखिए सिचुएशन बड़ी एंटी सिमेट्रिक है ऑनेस्टली, एंड आई रियली अप्रिशिएट जो क्रिएशन या डिजाइन के प्रो लोग हैं, मैं उनको अप्रिशिएट इस वजह से करता हूं कि उनकी प्रॉब्लम वाकई बहुत डिफिकल्ट है। देयर जॉब इज रियली वेरी हार्ड, वेयरएज जो डिजाइन को रिजेक्ट करते हैं और जिनका एथियस्टिक डिस्पोजिशन है उनकी प्रॉब्लम इतनी मुश्किल है नहीं है, क्योंकि उनको किसी एक क्लेम को डिस्प्रूव करना है टू जस्ट मेक द एंटायर बिल्डिंग कोलैप्स। और जो डिजाइन का जो क्लेम है ना, उनको किसी एक चीज को डिस्प्रूव करना और वो क्लेम डिस्प्रूव हो जाता है, एंड दैट इज क्लेम, एक काउंटर एग्जांपल देकर दैट क्लेम इज डिस्प्रूव। लेकिन जो क्रिएशनिस्ट हैं डिजाइन, उनको हर लेवल के ऊपर क्या कहते हैं अपने क्लेम को प्रूव करना, तो उनकी जॉब बड़ी मुश्किल है। मैं आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट कि जब आप एवोल्यूशन को देख लेते हैं जो कि डिजाइन का एक एंटीथेसिस है, तो आप डिजाइन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इट्स अ काउंट, और देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजाइन इज एलिमिनेटेड। आप जरूर और बातें लेकर आए, लेकिन जो फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि वाकई भाई जो एक डिजाइन की परफेक्शन का जो क्लेम कर रहा है उसके क्लेम्स में से किसी एक क्लेम को डिस्प्रूव कर देना शुड बी इनफ टू कोलैप्स द एंटायर बिल्डिंग, एंटायर एडिफिस। लेकिन उन विचारों को आई एम सिंपैथाइजिंग विद देम, एक क्लेम को क्या कहते हैं प्रूव करना है, तो उनकी जॉब बड़ी मुश्किल है।
अच्छा, अब सो देयरफॉर अगेन एवोल्यूशन को साइड पे रखा नहीं जा सकता क्योंकि इसका एविडेंस ज्यादा है और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमें पता नहीं है. अगेन जो मैं ट्रायल एंड एरर की बात कर रहा हूँ और लैक ऑफ इंटेलिजेंस और लैक ऑफ डिजाइनिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, वो एक नॉलेज बेस्ड स्टेटमेंट है, जबकि जो हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो एक इग्नोरेंस बेस्ड स्टेटमेंट है. तो इन दो लाइंस ऑफ रीजनिंग से जो मैं नतीजे निकालूंगा मैं उनको एक जगह कैसे रख सकता हूँ? तो रैशनैलिटी तो ये डिमांड करती है कि भी नॉलेज की बेस पे जो आर्गुमेंट बनाया जाए उसको मैं ज्यादा वेट दूं. खैर, हैविंग सेड दैट, मैं आपको थोड़े से पॉइंटर्स दे देता हूँ सेल्फ रेप्लिकेशन के और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में. इस बात को याद रखें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पे पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा काम हुआ है. ठीक है, ऐसी कोई जो एक अफवाह फैलाई जाती है कि जी वो 1954 के जो मिलर एक्सपेरिमेंट थे, अमीनो एसिड बने ज्यादा, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ की फील्ड जो थी वो स्टैग्नेंट होगी, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ, ये एक डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट है. ये कि ओरिजिन ऑफ लाइफ सॉल्व हो गई है, नोबडी सेज दैट. ये कि एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमें कोई क्लू ही नहीं है, दिस इज अ डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट. उसकी वजह क्या है कि आपके पास प्रोटोसेल्स की जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है फ्रॉम सिंपल फैटी एसिड्स, उसका एविडेंस मौजूद है. फिर उन मेम्ब्रेन्स की ग्रोथ का क्या कहते हैं एविडेंस उन्होंने करके दिखा दी है. फिर उसके बाद वो डिवीजन उन्होंने करके दिखा दी है. उसके बाद वो जो मेम्ब्रेन बनती है उसमें आयन एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, मटेरियल्स क्रॉस कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये उन्होंने करके दिखा दी. इसके अलावा 10-12 मेजर क्वेश्चंस हैं, वो उनको यानी वो तो बड़े टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएंगे अगर मैं इस स्ट्रीम में मैंने बात की. ये सारी बातें वो यानी प्रोटीन्स हैं, यानी कहते हैं जैसे प्रोटीन्स कहाँ से, उन्होंने एब्सेंस ऑफ प्रोटीन्स में, वो कहते हैं नहीं जब तक प्रोटीन नहीं होगी तो सही तरीके से रेप्लिकेशन नहीं होगी, और प्रोटीन बनाने के लिए रेप्लिकेशन चाहिए, रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन चाहिए. आप दिस इज कॉल्ड द क्लासिक कैच-22 ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी. अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये आई थिंक इट वाज वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन फोक्स. मगर अब आपको प्रोटीन के बगैर रेप्लिकेशन यानी प्रोटीन फ्री रेप्लिकेशन भी करके दिखा दी है लैब के अंदर. तो इतने ज्यादा हमें पॉइंटर मिल रहे हैं. फिर उसके बाद ये जो रेप्लिकेशन है इसके डांडे जाके क्रिस्टलाइजेशन के साथ मिलते हैं. आप जो क्रिस्टल की जो ग्रोथ है वो एक इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. अगर आप उस बात को करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है एक दूसरे के साथ, उन्होंने क्या कहते हैं जुड़ना है अगर वो अवेलेबल होंगे. और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो जो लॉक एंड की एक आसान मिसाल दी जाती है, वो फोर्सेस के लेवल पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ. तो नोबडी इज सेइंग ओरिजिन ऑफ लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. मोलेक्युलर एवोल्यूशन जो है उसको उसके अंदर देयर इज अ पैरेलल डार्विनियन फ्रेमवर्क ऑफ मोलेकुलर एवोल्यूशन. आप उस पर सर्च कीजिएगा, जिसको कहते हैं सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस. यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि सेल्फ रेप्लिकेशन तो क्रिस्टल लेवल पर आ चुकी है, उसी की वजह से क्रिस्टलाइजेशन हो रही है. अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने लंबे यानी कितनी लंबी चेन्स बना सकते हैं और कितनी देर तक वो स्टेबल रह सकते हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं कर जाते, डिके नहीं कर जाते, ये मोलेकुलर लेवल पर उनका सर्वाइवल है. और इस लेवल पर भी सिलेक्शन है. तो इस लेवल पर भी यानी सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ मोलेकुलर स्ट्रक्चर, मोलेकुलर एवोल्यूशन पे भी लोग काम कर रहे हैं. नोबडी इज सेइंग कि इसका आंसर कोई आज की तारीख में हमें नजर आ रहा है. हो सकता है कभी भी हमें बहुत सारे सवाल हमें कभी भी ना रिजॉल्व हो, लेकिन अगेन वी शुड बेस आवर डिग्रीज ऑफ बिलीफ, जो भी हमने अगर किसी प्रोपोजिशन के अंदर डिग्री ऑफ बिलीफ रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज नोन विद द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. उसकी बेसिस पर आप अपने ऑप्शंस को पॉपुलेट करें और ऑप्शंस को एलिमिनेट करें. ये मेरी दरखास्त है. बाकी आप, आई थिंक यू आर अ स्मार्ट पर्सन, आपको आप उसको खुद सोचे, अपना माइंड खुद बनाए. एब्सोल्युटली. नहीं सर, क्या नाम है इसका, काफ़ी लंबी स्ट्रीम हो गई है और अपना सब्सटेंशियल सर ने अपना इंतहाई डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है. लेकिन फिर भी मतलब अगर आपको दोबारा कोई बात करनी हो तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए, अपना गालिब की स्ट्रीम पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए. वी विल ऑलवेज बी मतलब वेलकम यू टू आस्क एनीथिंग आई मीन आउट. और सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली एक्सट्रीमली आई मीन मैं थैंक्स बोलूँ जनाब सब्सटेंशियल नीगर साहब का, जनाब अपना नॉन कन्फर्मर्स का, हाँ जी, अपना डॉक्टर वोल्फ